Okay, students, already ଆମେ molecular mass determination ର କିଛି example ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ PIQ question ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ solve କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି question ଦେଇଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଗୋଟେ example जो ଆମେ carbohydrate को discuss କରୁଥିଲୁ sucrose, maltose, lactose এই ତିନି ଜଣଙ୍କର molecular mass 342 आपको टिके मन रखिबो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज शॉर्ट रे मन रखिया पय बात कोन दे सुमोला सुमोला सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज मोलेकुलर मास है भाई 342 ओके नेक्स्ट तले मैं आपको आगे बा इक्विवेलेंट मास को स्टार्ट करबा चलो लेट्स स्टार्ट इट इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास ओके भाई ताले इक्विवेलेंट मास रो मीनिंग को ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ସପୋଜ ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ଭାଇ 100 रुपीस ନେଇ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଆପଲ କେଜି 1 केजी ऑफ apple 1 apple केजी ହେଲା ଭାଇ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା କଣ ବୁଝିଲା ନା ସେଇ ପଇସାରେ 10 କିଲୋ ଟମାଟୋ 10 किलो टमाटर दाम भी 100 टका ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା କଣ ବୁଝିଲା ଭାଇ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ସପୋଜ ଦୁଇଟା ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବୁକ୍ ସେ ଦୁଇଟା ନୋଟବୁକ୍ ହେଲା ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ସେଉ ହେଇପାରେ 10 କିଲୋ ଟମାଟୋ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଖାତା ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦବା କଣ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ ଭାଇ that means 1 kg apple is equivalent to 10 kg tomato equivalent to ଦୁଇଟା ଖାତା ତାହେଲେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ସେଉ ମିଳିପାରେ 10 କିଲୋ ଟମାଟୋ ମିଳିପାରେ ଦୁଇଟା ଖାତା ମିଳିପାରେ ଆମେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କଲୁ equivalent to ଠିକ ସେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆମେ इक्विवेलेंट मास रो मीनिंग को गोटे नुआ रूप रे यूज करिबा अलगा अलगा जिंस नबा किंतु से माने इक्विवेलेंट टू ईच अदर तर डेफिनेशन कोन कहूची भाई चलो ठीक है डेफिनेशन को देखिबा ताले इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन को बुझाउची ठीक हल्का लक्ष्य डेफिनेशन किछि बुझिबा दरकार नै बुझिबार अछि क्वेश्चन करिबार अछि इक्विवेलेंट मास can be defined as equivalent mass of a substance can be defined as number of parts by mass of substance displaced or combined directly or indirectly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen, 35.5 parts by mass of chlorine, 108 parts by mass of silver.
ताले कौन कहूची डेफिनेशन ना इक्विवेलेंट मास कैन बी डिफाइंड एज द number of mass by parts or number of parts by mass of substance that displace or combine directly or indirectly with 1 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen, 35.5 parts by mass of chlorine, so 8 parts by mass of silver. তাহলে আকু আমি एग्जांपल নেই সুন্দর ভাବରେ টিকে বুঝিবা তাহলে এই চারটি আমাকে খালি মনে রাখিবার ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆସ ଦେଖିବା ଗୋଟେ एग्जांपल फॉर एग्जांपल भाई टिके लक्ष्य करूथाओ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ एग्जांपल नंबर 1 ମୁଁ ନେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ एग्जांपल ले CaCl2 को ନେଲି कौन कही क्वेश्चन ना क्वेश्चन ने कही कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास केते कहार इक्विवेलेंट मास मागी रे ना कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास मागी कौन देइची ना CaCl2 दिया ताले CaCl2 रे कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास केते ये हला मोर क्वेश्चन केमिति ताको आंसर करबा को भलिया ताको आमे एग्जामिन करबा किबा ऑब्जर्व करबा को स्टेप रे हमें जीवा लक्ष्य कर भाई किछि टेंशन नहीं बहुत सिंपल CaCl2 रे कैल्शियम केतेटा अछि रे भाई ना सर कैल्शियम गोटे अछि क्लोरीन केतेटा अछि ना क्लोरीन सर दुईटा अछि ए जीवा थिंग कैल्शियम भाई एटी गोटे अछि क्लोरीन दुईटा अछि से गोटे कैल्शियम रो एटॉमिक मास केते ना कैल्शियम रो एटॉमिक मास हला 40 क्लोरीन रो एटॉमिक मास 35.5 into theta दिहाइची that means 71 लिखकर कि मास एती थाउ 35.5 into एती के हम परिमाण नै रे एती की जहारो हे गला तार आंसर आगु को हे जीवो तल मु कोन करली ना क्वेश्चन थला CaCl2 रो कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास केते फर्स्ट मु ताको कैल्शियम केतेटा अछि लिखली क्लोरीन केतेटा अछि लिखली गोटे कैल्शियम रो एटॉमिक मास हला 40 लिखि देली गोटे क्लोरीन रो एटॉमिक मास हला 35.5 दीटा अछि रे भाई इनटू 2 लिखि देगी रखि देली एबे चलो आगो को चलले लक्ष्य करू थाउ ताले सुनो जहारो इक्विवेलेंट मास हमें डिटरमाइन करबा ताकू राइट साइड रखिबा आउ जन को लेफ्ट साइड रे लिखिली एबे ताले 35.5 into 2 parts of chlorine combines with 40 parts by mass of calcium ताले 35.5 into 2 parts एतिगे लिखाई छी 35.5 into 2 combines with 40 part of calcium ताले एक part of chlorine combines with 40 by 35.5 into 2 parts of calcium हेजिबो टिके पछको फेरी चलो रे क्लोरीन नो इक्विवेलेंट मास केते ना 35.5 ताने लास्ट स्टेप रे 35.5 parts of chlorine combines with केते हबो लेफ्ट ले भाई 40 by 35.5 into 2 into 35.5 दियो काटाकुटी कर दियो रे छुरी धरी काटी दियो 35 कटि गला 2 20 कटि गला रे आंसर हला 20 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम तले अटे
In this case, the equivalent mass of calcium is 20. କ୍ୟାଲସିୟମ ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ କେତେ ରେ ନା 20 ବୋଲରେ yes or no ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଭାଇ ହେଇଯିବ ଇଜିଲି ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल ଯିବା नंबर 2 एग्जांपल लक्ष्य करूथाओ देखो एटी AlCl3 AlCl3 रे आमे कहार इक्विवेलेंट मास बाहर करिबा ना एल्युमिनियम रो काहे कि ना क्लोरीन रो ऑलरेडी डेफिनेशन ने गिवन अछि सब बळे एई चारिटारू जनकर थिबो आउ जनकर मागी थिबो एटा हला गुटे टाइप रो क्वेश्चन एई चारिटारू जनकर गिवन थिबो आउ गुटे मागी थिबो किए ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सिल्वर ताकू कंपेयर करके आउ उडा को मागी थिबो तल सेकंड एग्जांपल को मुगली कोठी की द सेकंड क्वेश्चन हला AlCl3 कोन कहिची ना एल्युमिनियम रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिवा हमें जानिचे कहारो ना क्लोरीन न जानिचे भाई चलो केतेटा एल्युमिनियम अछि ना गोटे एल्युमिनियम अछि एल्युमिनियम रो मास केते ना 27 क्लोरीन केतेटा अछि ना 3टा क्लोरीन तले 3 इनटू केते ना 35.5 चलो आगे चलिनी भाई केमिति लिखिबा ताले ताले हमें जहारो जानिचे ताको को साइड रखिबा ना ताको हमें लेफ्ट रखिबा ताले 3 into 35.5 parts of chlorine combines with 27 parts of aluminium. Okay, ताले 1 parts of chlorine combines with 27 by 3 into 35.5 बोलो रे yes or no yes sir 35.5 parts of chlorine combines with 27 by 3 into 35.5 into 35.5 ताले काटाकुटी कर दियो 35 5 खत्म 3 नुआ केते 27 9 is the answer ताले एल्युमिनियम रो इक्विवेलेंट मास केते पाई गले ने ए जीवो ताले ताले कोड करा होची किछि नुहे बहुत सारा आमे ऑलरेडी जनकर इक्विवेलेंट मास जानिचु आउ जनकर इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेशन करिबा जहा को जानिचु ताकू लेफ्ट साइड रे रखिबा जहार कैलकुलेशन करिबा ताकू राइट साइड रे रखिबा नेक्स्ट स्टेप रे जो क्वेश्चन टी गिवन अछि गिवन क्वेश्चन रे एटॉमिक मास को लिखि दबा लिखि सारला परे काम आगु को आगे नबा आ गोटे एग्जांपल को गली भाई नंबर 3 देखो दाओ Na2O एरे Na2O रे आमे कहार इक्विवेलेंट मास जानिचु ऑक्सीजन न जानिचु डेफिनेशन ने गिवन अछि जानिनु कहार ना सोडियम रो जानिनु ओके आगे बा ताले केतेटा सोडियम अछि ना सर दुईटा सोडियम ताले 2 into केते रे ना एटॉमिक मास हला 23 तेन करी मु कहि जीव घरे कंठस्थ रहइबा दरकार भाई एटॉमिक मास 1 रु 30 पर्यंत ऑक्सीजन केतरा अछि सर गुटे ऑक्सीजन मास केते 16 लेखा सरी गला आपको आगेबा केमिति लिखिबा ना 16 parts of oxygen combines with 2 into 23 parts of sodium ताहले भाई 1 parts of oxygen combines with 2 into 23 by 16 parts of sodium एबे ऑक्सीजन नो इक्विवेलेंट मास केते ना 8 8 parts of oxygen combines with 2 into 23
बाय 16 इंटू केतरे 8 कहीं ऑलरेडी आम जाचु 8 है ऑक्सीजन नो इक्विवेलेंट मास गिवन अच्छी फिक्स अच्छी भाई डेफिनेशन में अच्छी ऑलरेडी ताले 8 दुने 16 2 2 कटि गला काटाकुटी करदेली भाई रक्त भी बाहरी गला 23 Na that means equivalent mass of Na केतरे ना 23 हबो बोलो रे आउ गोटे क्वेश्चन को जीवा नंबर 4 लेखे करूथा Na2 ऊपर मु गली CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेखे करो कैल्शियम ऑक्साइड रे आमे कहार इक्विवेलेंट मास जानिचु ना ऑक्सीजन नो जानिचु कहार कैलकुलेशन करबा ना सर कैल्शियम रे करबा केतेटा कैल्शियम अछि ना गोटे अछि गोटेर एटॉमिक मास केते ना 40 ऑक्सीजन केतरा अछि ना गोटे अछि गोटेर मास केते ना 16 चलो लिखवा स्टार्ट करबा ताले 16 ग्राम ऑक्सीजन combines with 40 ग्राम किंबा 40 पार्ट्स यदि ग्राम इक्विवेलेंट मास कह देमु ताले ग्राम दे लिखबा अदरवाइज नो यूनिट चल नंबर नॉर्मली हमें लिखुचे ताले 16 parts of oxygen combines with 40 parts of calcium ताले एक parts of oxygen combines with 40 by 16 केतरे ऑक्सीजन नो इक्विवेलेंट मास ना 8 ताले 8 part of oxygen combines with 40 by 16 into 8 दियोरे टिहान दियोरे 8 दुने 16 एटी 20 ताले आंसर केतरे ना 20 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम ताले कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास केते थी 20 ये हैला टाइप 1 क्वेश्चन ताले टाइप 1 क्वेश्चन रे कोन आउतरे भाई कहि देली टाइप 1 क्वेश्चन रे गोटे कंपाउंड गिवन थिबो से कंपाउंड रे जनकर इक्विवेलेंट मास हमकु नन अछि हमें जानिचु से जने किए इट मे बी हाइड्रोजन इट मे बी ऑक्सीजन इट मे बी क्लोरीन इट मे बी सिल्वर हमें जानिनु कहारो ना हमें जानिनु आउ जे रहिगला ओके केमिति ताकू करबा ना स्टेप 1 रे प्रथमे सेमानकर एटॉमिक मास को लिखिबा लिखिदेली जहार इक्विवेलेंट मास हमें जानिचु ताकू लेफ्ट साइड रे रखिबा जहार कैलकुलेशन करूचु ताकू राइट साइड रे रखिबा देखि लेखा स्टार्ट करिबा एंट्रेंस तो किछि लिखिबा दरकार नै जस्ट खाली हिंट्स जेमिति के क्वेश्चन में CaO ताले 40 कैल्शियम रहला मास ऑक्सीजन रहला 16 ताले 16 खाली जस्ट हिंट्स 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 40 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम ताले 16 रे केते 1 रे केते 8 रे केते सरी गला जेमति LCl3 में करले Cl3 केटा अछि क्लोरीन केटा अछि ना तीनटा Cl3 ताले 3 into 35.5 क्लोरीन combines with 27 एल्युमिनियम एक रे केते 35.5 रे केते ई तो कथा भाई बहुत सादा ताले एई भलिया क्वेश्चन परीक्षा रे आसी पारे ये हला टाइप 1 क्वेश्चन आ गोटे करबा चलो सपोज आ गोटे नेली मु कोन कोन नेतलेटी CaO Na2O और MgCl2 नबा लक्ष्य करो नंबर 5 MgCl2 ताले MgCl2 रे एरे हमें जानिनु कहारो ना Mg रो जानिचु कहारो ना क्लोरीन नो केतेटा Mg अछि ना सर गुटे Mg तार मास केते ना 24 क्लोरीन केतेटा अछि ना दुईटा मास केते ना सर 2 into 80 35.5 लेखा स्टार्ट करबा हमें कहारो कैलकुलेशन करबा ना Mg ताकू रखबा डाहाने जानिचु कहारो ना क्लोरीन नो ताकू रखबा बा पटे चलो ताले 2 into
35.5 chlorine combines with 24 parts of magnesium তাহলে 1 রে কেতে রে না 1 রে হলা 24 বার 2 into 35.5 তাহলে 35.5 রে কেতে 35.5 রে এটু কেতে কর দেব না ইনটু 35.5 ତମେ ତ ଷ୍ଟେପ କରିବ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଦେଲି ସର୍ଟ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ରେ ହାଣି 35 ଖତମ 2 ବାହାର তাহলে 12 parts of magnesium એટલે magnesium ର equivalent mass ହେଲା 12 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବୋଲରେ yes or no ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାଇ ଇଜିଲି ଆମେ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରି ପାରୁଛୁ ଏବେ ମୁଁ टाइप 2 को सीरी ये टाइप 1 सला टाइप 2 ओके टाइप 2 को सीवा टाइप 2 कौन ना टाइप 2 हेला भाई equivalent mass of equivalent mass of an acid बहुत इंपॉर्टेंट भाई equivalent mass of an acid acid ର equivalent mass ବାହାର କରିବା ଚାલો ଦେଖିବା ଫର୍ମୁଲା କଣ କହୁଛି ନା ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଭାଇ equivalent mass of an acid is equal to molecular mass by basicity कौन फॉर्मूला रे बंधु ना मोलेकुलर मास बाय बेसिसिटी एबे क्वेश्चन आसिला बेसिसिटी काहाकू कहिबा कौन क्वेश्चन आसिला बेसिसिटी काहाकू कहिबा आंसर बेसिसिटी मींस number of H plus ion given by an acid generally in aqueous medium ताले गोटे aqueous medium रे गोटे acid केतेटा H plus डोनेट करि पारुची ताले जो acid जेतेटा H plus डोनेट करिवो ताकू आमे बेसिसिटी कहिबा ओके डन भाई डन एग्जांपल फॉर एग्जांपल मु एठी एसिड लिखिबी तमे माने साइड रे बेसिसिटी लिखिबा स्टार्ट करि दबो फर्स्ट एग्जांपल HCl सेकंड HNO3 third H2SO4 fourth H3PO4 H3PO3 स्टार्ट कर दिया रे एसिड लिखिबी तुम्हें माने बेसिसिटी लिखिबो ओके बोल रे यस H3PO2 H3BO3 HClO4 HClO3 जीवा आंसर को HCl ର ବେସିସିଟି କେତେ ନା HCl ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଦବ H ପ୍ଲସ ଯୁକ୍ତ Cl ମାଇନସ তাহলে কেতেটা H প্লস বাহিছি রে না স্যার গোটে H প্লস বাহিছি তাহলে বেসিসিটি কেতে বেসিসিটি হলা 1 HNO3 রে भी बेसिसिटी केते
H2SO4 basicity কেতে? 2। H3PO4 basicity কেতে? 3। H3PO3 ର basicity କେତେ? ଯିଏ ଭାଇ କହିଲା 3 ତାର ଗଲା ଫଟୋ। ତାର ଗଲା ଫଟୋ ଭାଇ ଖତ ମାଇନସ ରେ ଆନ୍ସର ମାର୍କ जो मिलिବ ମାଇନସ ରେ ମିଳିବ ଭାଇ। ତାହେଲେ H3PO3 ର ବେସିସିଟି 2। ତବ କେମିତି ହେଲା ଦେଖିବା ତାକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ ଭାଇ। नेक्स्ट ଯିବା H3PO2 ये भी भाई मन रखिबो बेसिसिटी 1। H3BO3 बेसिसिटी 1 ये भी ए ये भी ए। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ତମକୁ ହଇରାଣ କରେ ସେଇଗୁଡା ମେନଲି ଆସେ H3PO3 H3PO2 H3BO3 ଏଇଗୁଡା ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଇଯିବ ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଇକ୍विवेलेंट मास कैलकुलेशन करके आगे देखिबी तापर बेसिसिटी काहेकि चेंजेस हिची ताको भी कहि देछि। टेंशन नहीं हो ताले आगे देखि दियो। देखो H3PO4 रे स्ट्रक्चर तो निजिबा H3PO4 ये हला H3PO4 रो भाई फटो। तापर आसला H3PO3 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 तापर आसला सर H3PO2 POH H ओके ओके भाई लक्ष्य करो भल से बहुत इंटरेस्टिंग कथा रही। ताले H3PO4 रे लक्ष्य करो एठी केतेटा रिप्लेसेबल H प्लस अछि ना जो हाइड्रोजन गुडाक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सहित लागिथिबे दैट मींस फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये माने हेले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ताले जो हाइड्रोजन ता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सहित लागिथिबो that hydrogen can be replaced as H plus ion ସେଇଟା H plus ion ରୂପରେ ଯାଇପାରେ। ओके ओके भाई ताले एठी H plus केतेटा रे 1 2 3टा H plus ଯିବ। हेले बेसिसिटी केते ना सर 3 बेसिसिटी हला एठी 3 हबो। एठी आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे ऑलरेडी मु देखुतली गोटे क्वेश्चन पडिछि ताकू भी नेबी कोन से क्वेश्चन ना क्वेश्चन थिबो H3PO4 रे इन H3PO4 रे नंबर ऑफ OH केतेटा OH अछि ना नंबर ऑफ एटी OH तीनटा अछि। केतेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अछि किबा OH ग्रुप लागिछि एम जोटे क्वेश्चन पडिथिला क्वेश्चन टी थिला भाई ठीक है चेक करछि खाली इन H4P2O7 ने केतेटा PO बॉन्ड अछि देखबा ताकू देख ताले ठीक तोरी के पचारे PO बॉन्ड केतेटा ना सर PO बॉन्ड हला ठीक गोटे OH केतेटा ना OH हला सर ओके ये भी क्वेश्चन है पारे ताले देखु थाओ कौन सी मुहूर्त रे किछि भी क्वेश्चन आसी पारे बी प्रिपेयर सब बयाम को रेडी होपन पड़ी। युद्ध क्षेत्र को जाउछ माने ऑलरेडी सब प्रकार अस्त्र थिबा दरकार लॉन्ग रेंज गन थिबा दरकार शॉर्ट रेंज भी थिबा दरकार सब बेले सबुटा काम रे आसी पारे किछि कहि होबनी भाई जत्ते बेले हेले भी जोटा दरकार। ताले सेकंड क्वेश्चन रे ताले केतेटा रिप्लेसेबल H प्लस अछि ना 2 ताले आमे एठी बेसिसिटी केते नबा ना सर 2
जदि किए पचारे OH केते अछि ना सर OH दुईटा अछि थर्ड केस रे H प्लस केते जीवो ना गुटे ताले बेसिसिटी केते सर 1 हे जीवो ताले H3PO4 रे बेसिसिटी हला 3 H3PO3 रे बेसिसिटी हला 2 H3PO2 रे बेसिसिटी हला 1 एबे मुजिबी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन को equivalent mass of H3PO4 चलो भाई ताले ताले H3PO4 molecular mass लिखिबा फार्मूला में molecular mass by basicity ये थला मोर फार्मूला ताले molecular mass बार करे रे चलो तीनटा H अछि ताले 3 प्लस फास्फोरस 31 गोटे ऑक्सीजन को 16 16 64 बाय बेसिसिटी केते 3 जा हारिबो आंसर नंबर 1 गला नंबर 2 equivalent mass of H3PO3 molecular mass 3 plus 31 plus 16 3 48 बाय बेसिसिटी केते 2 ए जीवो नंबर 3 H3PO2 केतरे 3 प्लस 31 प्लस 32 बाय 1 ए जीवो जान सर भाई ओके आउ जो गुडे रेस्ट रही गला जेमिति कि रही गला पर कि ना इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl 1 plus 35.5 by 1 that means केतरे 36.5 ये मोर गुटे रही गला नंबर 4 आउ के रहिला ना H2SO4 H2SO4 molecular mass केते ना 98 बाय केते ना 2 आंसर केते ना 49 आउ के रहिला ना HNO3 molecular mass केते ना 63 बाय केते 1 आंसर केते ना 63 हे जीवो ताहले ताहले these are some example of how to calculate the equivalent mass of an acid बहुत साधा आउ जे गुटे रही H3BO3 तार रिजिन भी देखिबा बोरिक एसिड भाई H3BO3 मु कौन लिखिली ना तार बेसिसिटी केते ना बेसिसिटी हला 1 तमे कहबो काहे किए के तार किछि प्रूफ अछि कि हां अछि टिके चलो देखिबा बी OH 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 लक्ष्य करो रे एबे तो तम मनरे क्वेश्चन जो हाइड्रोजन गुडा को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सहित लागिथिबो से तो भारी जीवो तल तो तीनटा अछि तल तीनटा देखांता मु कहिछि भाई मैं वाटी लगेइथली मैं भी रिप्लेस ही पारे न हे भी पारे तले एठी कोन पाई रिप्लेस ही पारो नहंती तार आंसर कोन तार आंसर हैला boron is a electron deficient species boron पाखरे octet rule पालन करी नाही boron रो एटॉमिक नंबर केतरे एटॉमिक नंबर सर 5 अति सिंपल जदि मु लिखे 2 तापर हला 3 ता स्टैंडर्ड को जदि मु जीबी एटॉमिक स्ट्रक्चर रे 1s2 2s2 2p1 ताले केतेटा अछि आउटर सेल ले इलेक्ट्रॉन अछि सर तीनटा अछि ओके भाई ताले तीनटा आउटर सेल ले इलेक्ट्रॉन पड़िछि 1 2 3 ताले सी ऑक्सीजन सहित एठी केतेटा कोवेलेंट बॉन्ड करिछि ना तीनटा करिछि ताले 3 दुने केते हला रे 6 टा इलेक्ट्रॉन हला वर्तमान सुधा ता पाखरे 8 इलेक्ट्रॉन हेई नाही ताले सीए ऑक्टेट रूल पालन करिया पई भी चाहिबो से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ताले जेते बेले बोरिक एसिड एक्वस मीडियम को जीवो सीए ताहार कहानी को
चेंज କରିଦବ କଣ କରିବ ରେ ନା H3BO3 ଯେତେବେଳେ aqueous medium କୁ ଗଲା ଭାଇ ପ୍ଲସ H2O ଏଠି ନିଜର ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରି କରାକି BOH ର ହୋଲ ଫର ମାଇନସ ଯୁକ୍ତ H ପ୍ଲସ ये ହେଇଯିବ ତାର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାଇ BOH ର ହୋଲ ଫର ମାଇନସ ଯୁକ୍ତ H ପ୍ଲସ ତାହେଲେ ସେ କେତେଟା H ପ୍ଲସ ଡୋନେଟ କରିଛି ନା ଗୋଟେ H ପ୍ଲସ ଡୋନେଟ କରିଛି ତେଣୁ କରି ତାର ବେସିସିଟି କେତେ ନା ବେସିସିଟି ହେଲା ସାର୍ 1 ओके बेसिसिटी है ये H3BO3 रो कहानी इक्विवेलेंट मास तले बाहर करदबा इक्विवेलेंट मास ऑफ H3BO3 तले मॉलिक्यूलर मास जति की बाय केतरे ना बेसिसिटी हला हेजिबो ताले एसिड मानकर आमे इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करि पारिलु बहुत इजीली ये थिला किछि इंपोर्टेंट एग्जांपल जहा को निश्चय समस्त मन रखियो भाई मन रखिले परीक्षा ओरिएंटेड आसी पारे ता पूर्व जो गोटे एग्जांपल मु दउतली कहितली प्रीवियस क्वेश्चन गोटी टेट्रा बेसिक एसिड गोटे पड़थला H4P2O7 मु जो गोटे क्वेश्चन करतली क्वेश्चन टी थिला H4P2O7 लेखाई छी टेट्रा बेसिक एसिड सोरे बढ़िया क्वेश्चन तो गोटे पढ़ी गोटे टाइप रो अलगा टाइप रो भी हो पारे कोन ना टेट्रा बेसिक एसिड कहला माने बेसिसिटी केते बेसिसिटी केते अच्छा जदी केबे भी क्वेश्चन आसी गला H4P2O7 नो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया पाई ताले बेसिसिटी केते पुट करबो अच्छा एठी क्वेश्चन थला कोन ना क्वेश्चन लिखाई छी नंबर ऑफ PO बॉन्ड एठी केतेटा अछि नंबर ऑफ PO बॉन्ड केतेटा अछि ताल तुम माने इजीली करि परिबो केमति करबो टे लक्ष्य कर सुन ता टेक्निक भी अछि डिटेल्स भी अछि मु जस्ट खाली एठी ए टेट्रा बेसिक एसिड को लेके करू ठीक है लक्ष्य करता P कर दीटा पी सेंट्रल एटम टेट्रा बेसिक जेहेतु कहिची मु एठी OH दो दो करके चारटा लगी एठी दुईटा सेठी दुईटा ओके बंधु आउ के बचला ना ऑक्सीजन 1 2 3 4 चल जाई छी आउ अछि केते रे ना आवरी ऑक्सीजन केते अछि ना आउ तीनटा अछि H4P2O7 तले एठी गुटे मु ऑक्सीजन दे केते हे गला ना 5 तुमको काहे की देली तार भी गुटे चीज अछि सेठी के एबे मु जाउनी ये हला ऑक्सी एसिड रो गोटे एक्सप्लेनेशन से ऑक्सी एसिड रो केते बेले को टाइप रो लिंकेज हुए तार भी सब प्रमाण अछि गुटे अछि पेरोक्साइड लिंकेज गुटे अछि ऑक्साइड लिंकेज इटाला ऑक्साइड लिंकेज आ गुटेला डायरेक्ट लिंकेज तीन टाइप रो लिंकेज देखिबा ताकू भी हम देखिबा आपको देखिबा टेंशन नहीं ताले आंसर केतेटा पीओ बॉन्ड अछि ना सर पीओ बॉन्ड एथि दीटा अछि ये तुमको शॉर्टकट मेथड गुटे करा गला एई क्वेश्चन को नहीं हमें जेहेतु इक्विवेलेंट मास करूछु ताकू कोरिलेट करी हम देखबु जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पडिछि ये क्वेश्चन पड़तला एलटीआर सीबीजेड एग्जाम रे पड़तला H4P2O7 ओके आउ गोटे क्वेश्चन आस्तला ताकू भी हम डिस्कस कर दबा क्वेश्चन टी थिला what is the equivalent mass of H3PO4 in its reaction with NaOH when only two protons are neutralized देखो बढ़िया लिखि दीछि कोन कहछि ना कहछि गोटे रिएक्शन रे H3PO4 गोटे रिएक्शन जते बेले से NaOH सहित रिएक्शन करूछि
NaOH सहित रिएक्शन करिछि ड्यूरिंग दैट रिएक्शन H3PO4 रो 2 protons are neutralized 2 protons are neutralized क्वेश्चन रो भाषा को बुझ रे कोन कहूची सी क्वेश्चन को बुझ छानिया माने हे जीवन नहीं तर क्वेश्चन पढ़थिबो देखिदेलो H3PO4 आखि बंद करी बेसिसिटी 3 गला खेल खत्म टाटा बाय बाय किंतु कोन कहिची ना H3PO4 जते बेले NaOH सहित रिएक्शन करूची ये तारो दुईटा प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करिछि तले दुईटा प्रोटॉन लिखि दिछि से तले बेसिसिटी केते ना 2 बेसिसिटी केते ना 2 3 पुट करबनी माने खेल खत्म हिछि ए भलिया ट्रिकी क्वेश्चन तम एग्जाम रे आसुची आ आसीबो मध्य ओके इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड को एठी आज रखुछु नेक्स्ट टाइम देखिबू इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट बहुत